वेरी वॉर्म वेलकम टू LWS। आज का हमारा टॉपिक भी क्लाइमेट से ही रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और इस बार हमारा ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस हैज आल्सो बीन वन ऑफ द इनिशिएटर्स ऑफ इंडिया ओनली टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो ये पेरिस एग्रीमेंट से ही निकला हुआ या उससे बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है, सो दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक। सो लेट अस जस्ट बिगिन। देखते हैं इसका ओरिजिन कैसा हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसके इनिशिएटिव्स क्या हैं, वो सब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एज द नेम सजेस्ट, ये सोलर एनर्जी पे बेस्ड है या सोलर एनर्जी को यूज करता है। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करनी है या नए रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने। दिस इज बेस्ड ऑन रियल टाइम एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड, मेंबर ड्रिवन, दैट इज इट इज ड्रिवन बाय द मेंबर स्टेट्स। जो अलायंस के मेंबर्स है वही इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। इट इज मेंबर ड्रिवन, इट इज एन कोलैबोरेटिव एंड अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म जहां पे सारे मेंबर्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं। एक्शन ओरिएंटेड, मेंबर ड्रिवन एंड अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म टू increase the deployment of solar energy technologies, to increase the deployment of solar energy technologies in the world, right? So क्या है ये? It is an action oriented, based on real time action, driven by members, that is the member states of the alliance, and is also a collaborative platform where all the member states, they collaborate with each other to drive the alliance, right? So coming on to the next part, that is what is ये क्यों बना था ना? It was primarily framed to ensure energy security, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी किसको? मेंबर स्टेट्स, जो पीपल हैं ऑफ द मेंबर स्टेट्स उनको, राइट। enhancing access to energy, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है लोग उनके लिए, एंड जो मेंबर स्टेट्स है उनमें भी ज्यादा एनर्जी एक्सेस कर पाए लोग, मतलब हर घर में रोशनी हो, ठीक है। टू एनहांस द एक्सेस ऑफ एनर्जी बाय मेकिंग यूज ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। क्लीन टेक पे फोकस रहा बिकॉज ऑफ कोर्स ये सोलर अलायंस है, सो तो हमेशा इसका फोकस क्लीन टेक्नोलॉजीज पे रहा। सो दैट इज व्हाई it ensures energy security, enhanced access to electricity or energy for all the households, and also by means of clean energy technology. So इसका primary aim क्या हुआ? फिर इसका aim था to ensure both development and deployment, to develop and deploy, right, to develop and deploy cost effective, ये बहुत जरूरी है, cost effective and transformational, to develop and deploy cost effective and transformational energy solutions for the member states which are powered by sun. Of course solar energy है, so they have to be powered by the sun. So the primary aim is to ensure development and deployment of cost effective and transformational energy solutions which are powered by the sun, ठीक है। So this was its aim. अब किसको ये करना है? To the member states, to the countries which are become members of this alliance, right? To the member states, specifically focus था on less developed countries and small island states, with a special focus on less developed countries and small island states। ये एम रख के आगे बढ़े ताकि ये जो कंट्रीज हैं, दैट इज LDCs एंड स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ये अपनी लो कार्बन ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज को संभाल सके, ये अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सके, ठीक है। दे कैन कंट्रोल देयर कार्बन एमिशंस। सो दैट इज व्हाई दिस थिंग वाज डेवलप्ड, ओके।
So with a special focus on LDCs and small island states that you have to remember. Okay, and ये work कैसे करता है? It works in partnerships. ISA, it works in partnerships. किसके साथ partnerships है? With various multilateral development banks हो गए, फिर development financial institutions हो गए, then civil society groups हो गए, various private and public organizations होगी, इन सबके साथ collaboration करके it operates. इनके सबके साथ ये collaboration करके operate करता है ताकि इन सब से वो funding या technological help ले सके and to ensure these aims are being fulfilled. ठीक है? Now another very important thing that you need to remember for ISA is it is basic the strategy, जो इसकी basic strategy ये follow करता है. Now it follows a basic strategy of towards 1000. स्ट्रैटेजी कह लो, एम कह लो, गोल कह लो, मिशन कह लो, राइट? बट प्राइमरी ये स्ट्रैटेजी है, इट फॉलोज अ स्ट्रैटेजी ऑफ टुवर्ड्स 1000. दैट मीन्स इसके अंदर 3 बेसिक चीजें आती हैं. दैट मीन्स ensuring a mobilization of $1,000 billion. Mobilization of $1,000 billion of investments. कितना? $1,000 billion of investment in clean energy technologies powered by solar technologies. ठीक है? ये इतना investment. This is the first part of towards 1000 strategy. Second is ensuring energy access. Ensuring energy access to 1,000 million people. 1,000 million people based on solar energy. Again, ये जो energy access है, this has to be done by means of solar energy technologies only. And lastly, it also ensures an installation of 1,000 gigawatts. An installation of 1,000 gigawatts of power in these, in the member states, of course. And these again have to be powered by clean, sources or renewable energy sources. So these are some of the basic parts of the towards 1000 mission. अब इन सब से होगा क्या? These are 3 parts. इन सब से क्या होगा? That it will help to mitigate, solar energy emissions to the tune of, जो mitigation होगी इन सब चीजों से, to the tune of 1,000 million tons, right? 1,000 million tons of solar, जो कार्बन डाइऑक्साइड emissions हैं, उसको ये चीजें काउंटर करने में हेल्प करेंगी. Right? So this is one of the basic strategies. That is followed by ISA or International Solar Alliance. So जो million tons आप देख सकते हो, million tons, right? अब आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड emissions को काउंटर करेगा. So that is why this International Solar Alliance is very important. और इसकी जो ये towards 1000 strategy है, it is really commendable. But अगर वो इस सब चीज़ों पे work कर पाए and it keeps its promises and it is able to fulfill its aims, अगर वो अपने aims को, अपने जो भी उन्होंने strategy बनाई उसको fulfill करते हैं, so this is going to be a remarkable output. It's going to be a remarkable output in terms of the solar energy utilization and also help combating the climate change या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव. ठीक है? अब आते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. नाउ ISA इट ऑपरेट्स वाया प्रोग्राम्स. ये प्रोग्रामेटिक अप्रोच लेके चलता है. इट टेक्स अ प्रोग्रामेटिक अप्रोच. नाउ दिस मीन्स दैट इट ऑपरेट्स वाया डिफरेंट प्रोग्राम्स. ठीक है? डिफरेंट प्रोग्राम से ऑपरेट करता है. एट प्रेजेंट there are 9 programs. इसके currently 9 programs हैं जो run कर रहे हैं, and each of these programs has a different application. Each of these programs has a different application. मतलब सभी के application same नहीं हैं, but all of these programs have 4 key priority areas जिस पे वो हमेशा अपना focus रखते हैं. ठीक है?
तो वो 4 की प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं? एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी। कौन कौन से? लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। सो 4 प्रायोरिटी एरियाज जो है इसके, जो हर प्रोग्राम की फोकस रहते हैं, दोज आर 1 एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, number 2 capacity building, number 3 programmatic support, and number 4 is readiness and enabling of various activities, जो ये लेता है अंडर दीज प्रोग्राम्स। मतलब 9 प्रोग्राम्स हैं, उन 9 प्रोग्राम्स में डिफरेंट एक्टिविटीज वो टेकअप करता है। उन सभी एक्टिविटीज की ये 4 प्रायोरिटी एरियाज रहते हैं, प्रायोरिटी एरियाज है, ठीक है। सो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस ISCT कुछ ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं विच यू शुड नोट डाउन। आप फिर से एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उनको नोट डाउन भी करें, सो दैट दे आर कमिटेड टू योर मेमोरी एंड यू डू नॉट हैव टू रिविजिट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एनीवेयर एल्स, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ आई एम कंडक्टिंग द सेकेंड पार्ट, दैट इज द ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ या कहाँ से आया अलायंस, राइट? So origin, right? Now it was conceived, now ISA was conceived by a joint effort of India and France. India and France का ये joint effort था जिससे ये conceive हुआ, and they wanted to develop something, develop an organization to develop, mobilize efforts against climate change, so that जो पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त, उसको ज़्यादा हेल्प कर सके। एंड ये सारे एफर्ट्स दे वांटेड टू डू वाया सोलर एनर्जीज, राइट? तो सोलर एनर्जी पे एम्फसाइज करते हुए दे वांटेड टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो इट वाज कंसीव्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस, कब? ड्यूरिंग द साइडलाइंस ऑफ COP21, दैट इज इन 2015 एट पेरिस। You remember this? This is the time when Paris. This is exactly the same COP21 जब जहाँ पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। So this in itself is very important, और इस पे हमारा पेरिस एग्रीमेंट में already I have made another video. You can please go and check. So पेरिस एग्रीमेंट की साइडलाइंस पे ही इंडिया एंड फ्रांस they came together and they worked out another alliance. They worked out another effort to mobilize solar energy to combat the harmful impacts of climate change. And they culminated with International Solar Alliance, right? इसकी एक अमेंडमेंट हुई 2020 में, जहाँ पे इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क था उसको रिवाइज किया गया एंड अलाउ किया गया सारे UN मेंबर्स नेशंस को टू बिकम इट्स मेंबर्स, ठीक है। 2020 में जो इसकी फ्रेमवर्क में अमेंडमेंट हुई थी, उसके तहत दे अलाउड ऑल द US मेंबर कंट्रीज टू बिकम अ मेंबर ऑफ और अ पार्ट ऑफ International Solar Alliance, right? At present, there are 114 member states, out of which 92 members या 92 countries ने full documents दे दिए हैं to become full members, full members बनने के लिए इन्होंने अपने complete documents या instruments submit कर दिए गए हैं, ताकि इनकी complete membership के लिए इनका नाम consider किया जा सके, right? So this is very important. अब इसकी एक और चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज विजन एंड मिशन। हमने इसकी स्ट्रैटेजी पढ़ी, राइट? हमने इसका एम पढ़ा, अब हम इसका विजन और मिशन पढ़ेंगे। विजन इज लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, ठीक है। लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, ये इसका विजन था। एंड देन द मिशन इज एवरी होम नो मैटर हाउ फार विल हैव अ लाइट ऑफ इट्स ओन। एवरी होम
no matter, ये सब कुछ उसके लिखा हुआ है इसकी वेबसाइट पे भी, how far will have a light at home. ठीक है, so that was the mission of ISA. अब आपको ये जान के खुशी भी होगी दैट इसका जो डायरेक्टर जनरल है, दिस इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, he is Dr. Ajay Mathur. Ajay Mathur, and Director General is normally selected for a 4-year term. 4 years के लिए elect होते हैं, and he is also eligible for re-election. He is also eligible for re-election, right? And इसके जो headquarters हैं, they are at Gurugram, India, right? Headquarters are at Gurugram, India. So that is why you can see इसकी कितनी importance है for India's climate change efforts and for India as a whole, and also for your examination. That is why International Solar Alliance के बारे में आपको पता होना ही चाहिए. And apart from that, because इस Paris Summit की sidelines पे बना था, तो इस वजह से भी इसकी importance और बढ़ जाती है. एक चीज़ आपको और देखनी है कि UNGA, United Nations General Assembly को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है. ठीक है, दिस इज अनदर यू कुड से फैक्ट दैट यू शुड नो. UNGA हैज बीन ग्रांटेड द ऑब्जर्वर स्टेटस. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. इसके साथ ही आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग अप अनदर वेरी स्मॉल थिंग विच यू शुड डेफिनेटली नो. मतलब ISA तो ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड, बट दिस अनदर थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. हमारे इंडिया के और कौन से सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं या एफर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग टू नेम देम. फॉर एग्जांपल, वी हैव नेशनल सोलर मिशन. नाउ नेशनल सोलर मिशन इज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, देन वी हैव अ सोलर पार्क स्कीम, देन वी हैव अ बंडलिंग स्कीम, देन वी हैव अ ग्रिड लॉक, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के जो सोलर एनर्जी के प्रति किए गए हैं एंड विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. और ये चीज़ें ये दर्शाती हैं दैट इंडिया इज रियली सीरियस ऑन इट्स क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स. एंड ऑल्सो क्योंकि हमने अपने जो INDCs हैं ऑलरेडी फुलफिल कर लिए हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं, वॉलंटरी टारगेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू पेरिस एग्रीमेंट, वी हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड देम इन एडवांस. And as I discussed in the Paris Agreement, that we have already revised, Prime Minister Modi has already revised our targets for 2030 in the Glasgow Summit itself, at the Glasgow Summit. So India is far ahead of its commitments, and हमने जो net zero promise किया है वो है 2070. So India is really working hard to honor its commitments with respect to climate change. And हमारा ये जो International Solar Alliance भी एक चीज़ है. इट इज़ एन इनिशिएटिव दैट विल हेल्प टू प्लेस इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी. सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर थिंग. एंड जो हमारा नेशनल सोलर मिशन है, इनफैक्ट उसका प्राइमरी एम यही है टू प्लेस इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज, राइट. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड हैव विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एफर्ट्स टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. Right, so with this I bring this topic to a close, and please do leave in comments which other topics you want me to cover as a part of this basic series, because इसमें मैं static topics discuss कर रही हूँ और वो topics discuss कर रही हूँ जो इंडिया के international relations से जुड़े हुए हैं. I will also take up organizations which are primarily international and like IMF and all, वो भी सब भी मैं discuss करूँगी very soon, right. But do leave your comments and let me know what other specific topics you would want me to take up. Right, thank you so much for watching this video. Please do remember to subscribe the channel and hit that bell icon so that whenever I upload a new video, आपको उसका notification मिल सके. And please do like the video. Thank you so much once again.